When thieves slammed their car into his storefront, owner Gagurjeet Singh admits he was scared, but also determined to put up a fight. This security camera footage shows the crooks smashing cases and grabbing goods, even as they fended off Singh. I got bruises here because they hit me with the rod, and one of the guys having the big hammer, he was trying to hit me up when he was robbing the stuff. And Singh says it's not the first time. In January, thieves broke in through the back door and made off, he says, with $200,000 in cash and jewelry. In this latest theft, Singh estimates he lost another $600,000 worth of jewelry, and the damage means he can't reopen for the last of the holiday rush. We are just putting down every effort in this season, and this happens, it's very hard for us. It's the second brazen robbery in Montreal in the past week. Surveillance video captured these thieves going through cases and running. The designer says $8,000 in merchandise, including jewelry, was stolen. My initial reaction was sadness. It's so hard sort of being on this side of things. It's not just a Montreal problem. Police in Toronto say jewelry store robberies have doubled this year, while in parts of the GTA, they have more than tripled. According to an industry group that tracks these crimes, store thefts are on the rise nationally. It says thieves are drawn to the low risk, high reward of crimes that can happen in just minutes. Singh says he no longer feels safe. Even when we are sleeping, we are just thinking that somebody's at the store, somebody's at our house. It's very hard. हमारे दिमाग में एक ही चीज़ होती थी कि जब हम बाहर विदेश में जाएंगे, कनाडा जाएंगे, तो वहाँ पे तो इतनी बढ़िया सिक्योरिटी होती है, वहाँ पे तो इतनी बढ़िया सेफ्टी होती है, पुलिस वाले ऐसे मिनटों में पहुँच जाते हैं, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, कितनी सारी चीज़ें हमारे माइंड में होती हैं. लेकिन अभी जो सिचुएशन चली हुई है फिलहाल, वो आप देखो पहले. Yeah, he guys is sleeping. Inches away from being shot in their sleep, this is one of the dozens of bullet holes which pierced through this home in Brampton overnight. What were you thinking? Everyone is scared. Manjinder Danoa is one of at least 4 people renting space in this home on Senwood Street. Surveillance video shows a vehicle drive up and stop in front of the home at 2:15 Wednesday morning. A minute after turning the corner, 2 people can be seen walking towards the house. One of them appears to be recording what's about to happen next. Another angle captures one of the suspects firing at the house several times. Danoa says it sounded like a machine gun. How many shots did you hear? Me 26. The bullets were fired at the cars in the driveway, garage, and powerful enough to penetrate the front of the house, through one of the bedrooms and across the upstairs hallway. The heavy gunfire also waking up other neighbors on the street. It is frustrating. It's क्या बुरा हाल चला हुआ है कनाडा में. खुलेआम गुंडागर्दी है, खुलेआम गोलीबारी ऐसी हो रही है ना कि कहीं से भी गाड़ी में उतरते हैं 2 बंदे और उसको गोली मार जाते हैं. कितने सारे इंडियन स्टूडेंट्स की पिछले 1 महीने में जान चली गई. और अभी लूटपाट बढ़िया चली है ज्वेलरी की शॉप पे. ऐसे खुलेआम ये नहीं है कि रात को आ रहे हैं, वो रात के 2 बजे आ रहे हैं, 3 बजे आ रहे हैं. दिन दहाड़े सीधा घुसते हैं ज्वेलरी की शॉप में. बंदे खड़े हैं वहां पे, उनको कोई डर नहीं है कि दुकान के मालिक अंदर हैं, कस्टमर्स भी अंदर हैं, कुछ भी नहीं. इसने क्या किया, ये गाड़ी लेके सीधा एकदम से अंदर चला गया. इन्होंने एकदम से चोरी करनी शुरू कर दी और वो आपको ऊपर से मार भी रहे हैं. अगर वो जो दुकानदार, जो ओनर है उसका दुकान का, वो उसको जब रोकने की कोशिश करा, वो उसी को मार रहा है. ये बंदे कितने ज्यादा डरे हुए हैं कि अब हम रात को सो भी नहीं सकते. हमारे दिमाग में यही रहेगा कि दुकान में, हमारी दुकान ठीक भी है, कहीं दोबारा से हमारे शॉप पे कोई घुस तो नहीं गया, या फिर हमारे घर में कोई घुसाएगा. तो इतना ज्यादा डर का माहौल चला हुआ है. मॉल के, ये तो चलो वो ओपन शॉप थी रोड पे, लेकिन मॉल के अंदर घुस के, मॉल के अंदर जो ज्वेलरी की शॉप है उसको तोड़ के भी सारी की सारी ज्वेलरी निकाल के दौड़ जाते हैं. कोई नहीं रोकता. सबको पता है कि अगर हम रोकने जाएंगे तो हम अपनी जान को ही खतरे में डाल रहे हैं, भी हमें मार देगा वो जान से. लेकिन जो ओनर ही है उस दुकान का, जो मालिक है, वो नहीं देख सकता. ऑब्वियसली उसको उस टाइम अपनी जान की परवाह नहीं होगी, वो उस टाइम उसको रोकेगा. तो आपको क्या लगता है सेफ्टी, ये सेफ्टी है कनाडा में? जो दिन दहाड़े गोलीबारी हो रही है, पिछले 1 महीने में कितने स्टूडेंट्स की जान गई है. 1 मिनट में गोली मार के चले जाते हैं और कोई नहीं, कोई सजा नहीं होती उनको. अगर आपको लगता है ना कि यहाँ की पुलिस कुछ करती है, कुछ नहीं करती. अगर ये आपके दिमाग में गलत फहमी तो निकाल दो, कुछ नहीं करने वाली. वो इनके लोग हैं, वो इनकी तरफ ज्यादा वो ध्यान देगी कि भाई नहीं, चल देख लेते हैं. या उनको पता है जो यहाँ के लोग हैं कि हम कैसे छूट सकते हैं यहाँ से, क्या चीजें, सारी चीजें ऐसी होती हैं. तो बस यही है कि अपनी सेफ्टी का जितना हो सके ध्यान रखो. कहीं भी चोरी हो रही है, आपको बीच में पड़ने की कोई नीड नहीं है कि मैं रुकवा लेता हूँ या मैं रुकवा लेती हूँ. सब कुछ इंश्योरेंस में होता है. या फिर अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हो, पहले अपनी जान का ध्यान रखो. कोई जरूरत नहीं है आपको कि मैं जाके चोरी हो रही है मैं रोक लूँ. आपको कुछ रोकने
की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी ड्यूटी नहीं है। अगर आपको वो कुछ पे कर रहे हैं, जहाँ से आप जॉब लगे हो सिक्योरिटी गार्ड की, जो कंपनी आपको अगर कुछ बढ़िया पे कर रही है, आपको बढ़िया इंश्योरेंस दे रही है, तो आप कुछ करो, आप थोड़ा बहुत कर सकते हो। अदरवाइज अपनी जान पहले ध्यान में रखो। भाड़ में गई नौकरी, नौकरी से ही निकालेंगे, भाड़ में गई। अगर अभी जो वो लड़का था हर्षदीप जिसकी अभी डेथ हुई, उसको गोली मार के गई ना जान उसकी, उसने क्या कर लिया उनको रोक के, उसने रोका, उन्होंने मिनट में गोली मार दी, गई जान उसकी, माँ बाप रह गए अकेले। तो भाई अपनी जान पहले देखो। जितनी भी चोरियां होती हैं, आपको कुछ नहीं करना, आराम से खड़े रहो, भाई तू ले जा करके। लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि कोई सेफ्टी नहीं है यहाँ पे कनाडा में, कि आपको लग रहा है बहुत सेफ्टी वाला देश है, क्राइम ही नहीं है, बहुत क्राइम है। अगर आपको लगता है कि हमारे इंडिया में ही क्राइम है, हमारे देशों में ही क्राइम है, यहाँ पे क्राइम नहीं होते, तो खुलेआम क्राइम होते हैं। इतने नहीं होंगे जितने इंडिया में है, बट यहाँ पे तो सीधी जान ही ले लेते हैं। यहाँ पे हाथ में ऐसे नाइफ रखते हैं, चक्कू मार मार के ऐसे, जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आपको जिंदा नहीं छोड़ते, गोली मार देते। तो ये सब चीज़ें चली हुई हैं। तो बस सेफ्टी के साथ रहो, अपना ध्यान रखो, किसी भी बीच के पंगे में मत पड़ो, आपको सिर्फ अपना ध्यान रखना है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी। समझ लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो फिर मिलती हूँ आपसे।